کراچی سے خیبر تک کی خبروں میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ ڈیرہ غازی خان میں مدرسے کی چھت گرنے سے 6 طالب علم جاں بحق متعدد زخمی ہو گئے۔ حادثہ ناقص میٹیریل استعمال کرنے کے باعث پیش آیا، تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ شاکوٹ میں مکان کی چھت بوسیدہ ہونے کے باعث جا گری، حادثے میں 30 خواتین اور بچے زخمی ہو گئے۔ چنیوٹ میں نامعلوم ملزمان نے 18 سالہ لڑکی کو زندہ جلا دیا، ملزمان مسخ شدہ لاش حویلی میں پھینک کر فرار، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ صادق آباد میں ایک اور کمسن بچی بنی کی فرسودہ روایت کی بھینٹ چڑھ گئی، پنچایت کا 4 لاکھ روپے اور زرعی زمین دینے کا بھی حکم، باپ نے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پنجاب کے کھیتوں کھلیانوں میں لہلہاتی گندم کی فصل پک کر تیار، بہاولپور میں گندم کی کٹائی شروع ہو گئی۔ ساؤتھ ایشین گیمز میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے گجرانوالہ کے پہلوانوں کے اعزاز میں تقریب، 25,000 سے 1 لاکھ روپے تک کے نقد انعامات دیے گئے۔ شہداد پور میں 3 افراد کے قتل کا ڈراپ سین، نیم پاگل شخص نے فائرنگ کر کے تینوں کو موت کے گھاٹ اتارا، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ صوبائی وزیر صحت جام مہتاب حسین کے انتخابی حلقے میں قائم رورل ہیلتھ سینٹر انتہائی خستہ حالی کا شکار، انتظامیہ نے احتجاجاً اسپتال ہی بند کر دیا۔ خیرپور کے اساتذہ 2 سال سے تنخواہوں سے محروم، گزشتہ 4 ماہ سے سراپا احتجاج، تاحال انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ کوہستان میں مٹی کا تودہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی، ملبے سے 18 زخمیوں کو نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سی بی کے قریب جعفر ایکسپریس کے ٹریک پر دھماکہ، 3 بوگیاں الٹ گئیں، حادثے میں 2 مسافر جاں بحق جبکہ 8 زخمی ہوئے۔ اور چین کا اعلیٰ سطحی وفد گوادر پہنچ گیا، گورنر بلوچستان نے استقبال کیا، چینی وفد نے ہر شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے خبریں شامل کی جائیں گی صبح پنجاب سے۔ ڈیرہ غازی خان میں مدرسے کی چھت گرنے سے 6 طالب علم جاں بحق ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے، حادثہ ناقص میٹیریل کے استعمال ہونے کے باعث پیش آیا۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے گیدڑوالے کے قریب مسجد میں نئے تعمیر ہونے والے مدرسے کی چھت اچانک زمین بوس ہو گئی، چھت کے نیچے طالب علم تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھے، حادثے میں 6 طالب علم جاں بحق جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے، ملبہ زیادہ ہونے کے باعث امدادی ٹیموں کو کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا رہا۔ ڈی سی او ندیم الرحمان کے مطابق مدرسے کی چھت کی تعمیر میں انتہائی ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا، زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا جہاں متعدد بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ کمشنر ڈی جی خان محمد یسرف کے مطابق حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ادھر شاکوٹ میں مکان کی چھت گرنے سے 30 خواتین اور بچے زخمی ہو گئے جنہیں THQ منتقل کر دیا گیا، ان میں سے متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ شاکوٹ کے محلے مغل پورہ میں افغان مغل کے گھر ایک محفل جاری تھی کہ اچانک گھر کی بوسیدہ چھت گر گئی جس سے 30 سے زائد خواتین اور بچے زخمی ہو گئے، 13 خواتین کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شاکوٹ منتقل کیا گیا جبکہ دیگر معمولی زخمیوں کو ریسکیو اہلکاروں نے جائے حادثہ پر ہی ابتدائی طبی امداد دے کر فارغ کر دیا۔ زخمی ہونے والی خواتین میں 80 سالہ بلقیس بی بی، 50 سالہ عابدہ پروین، 60 سالہ عذرا بی بی، 25 سالہ مصباح بی بی، 40 سالہ بلقیس اور 3 کمسن بچیاں شامل ہیں۔ محفل کے دوران گھر میں 30 سے 40 خواتین موجود تھیں۔
चिन्योट में नामालूम मुलजिमान ने 18 साल लड़की को जिंदा जला दिया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। चिन्योट के इलाके सगीर टाउन में नामालूम मुलजिमान ने 18 साल लड़की शबाना को जिंदा जला दिया। मुलजिमान मस्कशुदा लाश घर के करीब वीरान हवेली में फेंक कर फरार हो गए। अहले इलाका की जानिब से वीरान हवेली में मस्कशुदा लाश के मिलने की इत्तला पर मौके पर पहुंचे और लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। दूसरी जानिब मकतूला के वालिदैन की जानिब से शाहिद नामी नौजवान पर लड़की को जिंदा जलाने का इल्जाम आयद किया गया है। शकरगढ़ में रिश्तेदारों के हमरा पिकनिक मनाने वाला नहम जमात का तालिब इल्म दरियाए रावी में डूबकर जाबहक हो गया। जिद्दोजहद के बाद लाश पानी से निकाल ली गई है। शकरगढ़ के शहर रिहायशी मोहम्मद उस्मान खान का बेटा शाहजेब खान अपने रिश्तेदारों के हमरा तफरी के लिए दरियाए रावी के किनारे बसाव कोट गए, जहां शाहजेब खान ने दरिया में नहाने के लिए छलांग लगाई। पानी गहरा होने के बायस वो डूब कर जाबहक हो गया। मकामी अफराद ने जिद्दोजहद के बाद शाहजेब की लाश दरिया से निकाल ली। मैयत जब घर पहुंची तो कोहराम मच गया और अहले खाना पर सख्ता तारी हो गया। मुतफ़िक को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में इलाके की अहम सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। और अफसोसनाक वाकया पेश आया सादिकाबाद में, जहां एक और कमसिन बच्ची फरसूदा रिवायात की भेंट चढ़ गई। पंचायत ने बनी का हुक्म सादिर कर दिया। गरीब बाप ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया। सादिकाबाद के नवाही इलाके भोंग के रिहायशी शाबान को अपनी बीवी और रिश्तेदार रोशन मुनीर के दरमियान ताल्लुकात का शुबा था, जिस पर शाबान ने पंचायत बुला ली। बस्ती के वडेरे बशीर अहमद और बेला खान की सरबराही में होने वाली इस पंचायत में फैसला सुनाया गया कि शमशाद बीबी का 5 रोज अंदर छोटी बेटी 8 साल तस्लीम को शाबान के साथ वनी करे, जबकि वो 4 लाख रुपए और 1 एकड़ ज़री ज़मीन भी देगा। फैसला न मानने की सूरत में इलाका बदर करने का हुक्म भी सुनाया गया। दूसरी जानिब लड़की के बाप ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। उधर पुलिस थाना भोंग के एएसआई अल्ताफ का कहना है कि तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तहकीकात के बाद मुकदमे का इंदराज होगा। राजनपुर में कच्चे के इलाके में छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। पुलिस ने छोटू गैंग के कई ठिकानों को भी तबाह कर दिया है। पुलिस का कहना यह है कि ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे मोहम्मद आमिर अली से। मोहम्मद अली, बताएगा कि ऑपरेशन किन इलाकों में किया जा रहा है और पुलिस को अब तक कौन सी कामयाबियां हासिल हुई है? कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन तेज हो गया है। पंजाब के 6 जिला की पुलिस 1600 जवान उसमें हिस्सा ले रहे हैं। अभी जो ताजा इतला है, पुलिस और जरायम पेशा ग्रुप छोटू गैंग के खिलाफ जो फायरिंग हुई है उसमें 6 साल बच्ची 36 जख्मी हुई है। और ये भी इतला है कि पुलिस मार्टर गोले इस्तेमाल किया है, मगर पुलिस को अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने अपने इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है। दोनों तरफ से जदीद असले का इस्तेमाल हो रहा है। जी, कितने एहलकार हैं बताइएगा मोहम्मद अली जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं पुलिस की जानिब से? पुलिस के टोटल 1600 एहलकार है। 6 जिला है जिनमें रहीमर खां, भावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान समेत राजनपुर के 1600 एहलकार है जो कच्चे में ऑपरेशन करे, मगर पुलिस को अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। छोटू गैंग वाले और पुलिस के दरमियान शदीद असले से इस्तेमाल हो रहा है, मार्टर गोले इस्तेमाल हो रहे दोनों तरफ से। और छोटू गैंग के कितने एहलकार हैं, कितना गैंग है, ये कितना बड़ा गैंग है जिसके लिए ऑपरेशन किया गया है? छोटू गैंग वाले तकरीबन ये 50 या 55 60 ये ग्रुप है। छोटू ग्रुप, पार्टी ग्रुप, ये 2 ग्रुप है। एक छोटू ग्रुप है, एक पार्टी ग्रुप है। इनके 60 एहलकार है जिन्होंने पंजाब पुलिस को के लिए चैलेंज बन कर गई है। ऐसे कई माजी में बहुत से ऑपरेशन हुए मगर पुलिस नाकाम हो गई है। अपने पुलिस एहलकार शहीद करवाती है, अपने जख्मी करती है, मगर छोटू गैंग का कुछ नहीं कर सकती पंजाब पुलिस। जी, आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, हमें तफसीलन आगाह करे थे छोटू गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है इस वक्त। आगे बढ़ेंगे। जंग पुलिस लाइन में सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें पेट्रोलिंग पुलिस की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पुलिस लाइन जंग में मुनक्किदा सेमिनार में एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद चौधरी फारूक अहमद हंदल समेत जिला जंग और जिला चिन्योट की जुमला नफरी ने शिरकत की। सेमिनार में पेट्रोलिंग पुलिस की माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया और मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। शुरुका से खिताब करते हुए रीजनल एसएसपी ने कहा कि शहरियों के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत जारी की कि मुल्ज़िमान अपने इख्तियारात का निफाज कानूनी दायरा कार में रहकर करें। उनका कहना था कि करप्शन जैसे नासूर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
تقریب کے آخر میں بہترین کارکردگی پر اہلکاروں کو سرٹیفکیٹس دیے گئے جبکہ 234 اہلکاروں کو شوکوز نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہے کہ فرائض سے غفلت برتنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، مریضوں کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے ڈی ایچ کیو ننکانہ کا اچانک دورہ کیا اور مریضوں کی شکایات سنی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صوبے کے تمام سرکاری اسپتالوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی پنجاب حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف عوام کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت صوبے کے عام آدمی کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ننکانہ صاحب ان کے اچانک دورے کا مقصد بھی یہاں مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لینا تھا۔ خواجہ سلمان رفیق نے یقین دہانی کروائی کہ وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ننکانہ صاحب میں ڈاکٹرز اور سہولیات کی کمی کو جلد از جلد دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ انہوں نے ڈی ایچ کیو اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر غلام یاسین کو ہدایت کی کہ وہ اسپتال میں موجود واحد سرجن ڈاکٹر کو پابند کریں کہ وہ شام 5 بجے تک اسپتال میں موجود ہو۔ انہوں نے اسپتال میں فالتو اشیاء کو تلف کرنے کے یونٹ کو غیر فعال ہونے پر سوال بھی اٹھائے۔ چیف سیکرٹری کی سربراہی میں قائم پنجاب حکومت کی نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی کے رکن پیرزادہ محمد اکمل اویسی کا کہنا ہے کہ منشیات کے عادی افراد کے علاج معالجے کے لیے پنجاب حکومت صوبے کے ہر ضلع میں ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کر رہی ہے، جس کے تحت جلد سیالکوٹ میں بھی اسی نوعیت کا ایک ٹریٹمنٹ سینٹر قائم کیا جائے گا۔ سیالکوٹ پریس کلب میں ڈاکٹر ریاض سلطان، ڈاکٹر عبدالشکور مرزا، ڈاکٹر شاہد محمود، سائمہ اصغر اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران پیرزادہ محمد اکمل اویسی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ منشیات کی فروخت کا دھندا عروج پر ہے اور اب تک تو جیلوں میں منشیات بھی فروخت ہوتی ہیں۔ منشیات کی لعنت سے لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں جن کے علاج معالجے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے کوائف اکٹھے کرنے کا حکم دیا ہے۔ منشیات کے عادی افراد کے علاج معالجے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کی گئی ہے جو صوبے بھر میں کوائف اکٹھے کرنے کا کام کر رہی ہے۔ ادھر لودھرا میں عوامی شکایات کے پیش نظر پولیس لائن میں خصوصی برانچ قائم کر دی گئی ہے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ڈی پی او لودھرا اسد سرفراز خان نے پولیس لائن میں جملہ ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، تفتیشی افسران، اسپیشل برانچ اور دیگر ایجنسیز کے افسران سے خصوصی میٹنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کے تعاون کے بغیر جرائم پر قابو پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں صبر اور برداشت کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ میٹنگ کے دوران ضلع بھر کے تمام اہم مقامات کی سیکیورٹی کو متعلق تمام افسران کو مکمل طور پر بریف کیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ ٹریفک جیم رہنے لگی ہے جبکہ ضلعی انتظامیہ بھی ان کو روکنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور گرد و نواح میں ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی تجاوزات کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ جگہ جگہ تجاوزات کے باعث ٹریفک جیم معمول ہے۔ عوام کے لیے گزرنا بھی محال ہوتا ہے۔ گلی محلوں، چوراہوں اور مین بازاروں میں تجاوزات کے باعث عوام مشکلات کا شکار ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ سے کئی بار شکایات کی گئی لیکن اس طرف بالکل بھی توجہ نہیں کی گئی۔ تجاوزات میں کمی ہونے کے باعث اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے وارننگ جاری کی گئی ہے، تجاوزات ختم کر دی جائیں ورنہ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ اور ناظرین، پنجاب کے کھیتوں کھلیانوں میں لہلہاتی گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ بہاولپور میں گندم کی کٹائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے مرتضیٰ کی رپورٹ میں۔ بہاولپور جنوبی پنجاب کا بہت اہم شہر ہے۔ یہاں کی اکثریت زراعت کے پیشے سے اپنا روزگار کماتی ہے۔ بہاولپور ضلع میں گندم 7 لاکھ ایکڑ کاشت کی جاتی ہے اور یہ صوبہ پنجاب کی زرعی معیشت میں ایک اہم اور کلیدی کردار کا حامل ہے۔ بہاولپور میں اس وقت گندم کی کٹائی کا موسم تقریباً شروع ہو چکا ہے اور کھیتوں کھلیانوں میں لہلہاتی فصلیں اب پک چکی ہیں۔ مارچ کے مہینے سے تبدیل ہونے والے موسم نے بالآخر گندم کو بھی پکا دیا ہے۔ بہاولپور کے بارانی علاقوں میں کٹائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ کسان جو کہ گزشتہ کپاس کی فصل سے بھی کافی دل برداشتہ ہوا ہے، اس کی نظر اس وقت گندم کے ریٹ پر ہے۔ میں بہت غریب ہوں، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے کسان پیکج میں جو ریلیف ہے وہ بھی نہیں مجھے ملا۔
اس لیے سر میں قرضے بہت انتہائی قرضہ دار ہو گیا ہوں، اس لیے گندم کی کٹائی جو ہے اب وہ اس کا ریٹ بھی نہیں اچھا مل رہا مجھے۔ مہنگی کھادیں، زرعی ادویات اور مہنگے پانی کی بدولت پلنے اور پکنے والی فصل کسان کو عرصہ دراز سے مشکلات میں ڈالے ہوئے ہے۔ کسان بہت پریشان ہے، اخراجات بھی بہت زیادہ بڑھ گئے، جس وجہ سے کھاد سپرے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ ہر دفعہ کسان پر امید ہوتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ کی پالیسی کسان کو معاشی تحفظ فراہم کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مزدوری کر رہے ہیں سر، زمیندار بھی سانو دانے نہیں پورے دے رہے، انہوں نے بھی ریٹ اچھا ملے گا تو سانو بھی اچھا ریٹ دیں گے نا۔ پہلے سے تباہ حال کسان پھر حکومتی پالیسیوں کی بھینٹ چڑھتا ہے، اور اس طرح نہ صرف کسان غربت اور افلاس کی طرف جاتا ہے بلکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی پر بھی بہت واضح فرق پڑتا ہے۔ کسانوں کی نظریں ایک بار پھر حکومتی پالیسیوں پر براجماں ہیں۔ دیکھنا ہے کہ حکومت ہمارے کھیتوں اور کھلیانوں کو آباد کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ چودھری مرتضی، وقت نیوز، بہاولپور۔ منشن آباد میں گندم کی کٹائی کے ساتھ ساتھ نہروں میں بھل صفائی کے کام کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ منشن آباد کے بارانی اور نہری علاقوں میں گندم، چنا اور سرسوں کی کٹائی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ کاشتکار ہارویسٹر اور دیگر مشینوں کے ذریعے دن رات کٹائی میں مصروف ہے۔ کاشتکاروں کی کوشش یہ ہے کہ ممکنہ بارش سے قبل فصل کو محفوظ کر لیا جائے۔ دوسری جانب نہروں میں پانی کی روانی کو برقرار رکھنے اور ٹیل کے زمینداروں تک پانی کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے بھل صفائی کے کام بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ سب انجینئر غلام مصطفیٰ جو یعنی نمائندہ وقت نیوز کو بتایا کہ نہروں کی بھل صفائی کا کام آئندہ چند روز میں مکمل ہو جائے گا تاکہ دھان کی کاشت کے لیے بروقت پانی نہروں میں چھوڑا جا سکے۔ جڑاوالا میں اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں 20 دلہنوں کو معقول جہیز دے کر رخصت کر دیا گیا۔ جڑاوالا میں 20 اجتماعی شادیوں کی پروقار تقریب منعقد ہوئی جس میں سوسائٹی کی طرف سے باراتیوں کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو کھانے کے علاوہ دلہنوں کو جہیز کا سامان بھی دیا گیا۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی خالدہ منصور، وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر رائے حیدر علی خان کھرل اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ جڑاوالا میں اجتماعی شادیوں کا پروگرام قابل تحسین اقدام ہے اور خصوصاً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس میں خیر خیر میں حصہ لیا۔ اجتماعی شادیوں کی تقریب کے موقع پر دلہنوں کے والدین نے سوسائٹی کی کاوشوں کو سراہا۔ آخر میں دعاؤں کے ساتھ دلہنوں کو رخصت کر دیا گیا۔ سرائے مغل میں پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیلتھ مینجمنٹ کے زیر اہتمام فری ڈینٹل میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیلتھ مینجمنٹ کے زیر اہتمام دانتوں کی حفاظت اور صحت کے حوالے سے سالانہ 13ویں فری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈینٹل سرجن ڈاکٹر محمد توقیر احسان نے شرکاء کو اپنے دانتوں کی حفاظت اور ٹوتھ برش کرنے کے صحیح طریقے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مردوں کی نسبت خواتین میں دانتوں کی تکالیف اور بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر 3 دن تک دانتوں کو صاف نہ کیا جائے تو ان میں جراثیم آ جاتے ہیں۔ جڑاوالا میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ساؤتھ ایشین گیمز میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے پہلوانوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کلکتہ کے شہر آسام میں ہونے والی ساؤتھ ایشین گیمز میں بھارتی پہلوانوں کے خلاف کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے قومی پہلوانوں کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ تقریب کی صدارت کرتے ہوئے کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن محمد آصف کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں پاکستان اور گوجرانوالہ کا نام روشن کرنے والے یہ پہلوان ہمارا سرمایہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ویٹ لفٹر، ریسلر اور کبڈی جیسے کھیلوں میں 9 پہلوانوں کا بھارت کی سرزمین پر جیت کر آنا خوش آئند ہے۔ اس موقع پر لیگی ایم پی اے توفیق بٹ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت کھیل کے میدان میں نمایاں کام کر رہی ہے۔ گوجرانوالہ کا نام روشن کرنے والے پہلوانوں کی سرپرستی کرنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تقریب کے اختتام پر کمشنر گوجرانوالہ اور لیگی ایم پی نے پہلوانوں میں 25,000 سے 1 لاکھ تک کے نقد انعامات بھی تقسیم کیے۔ سرگودا کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈاکٹرز کی ہڑتال آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال ہم جانیں گے نمائندہ وقت نیوز شیخ عثمان سے۔ شیخ عثمان، آگاہ کیجیے گا، آج تیسرا روز ہے اس ہڑتال کو اور ڈاکٹرز کی اس ہڑتال کی وجہ سے مریضوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں سرگودا کے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں جہاں آج ہڑتال کا دوسرا روز جاری ہے۔ پرسوں رات ایک یہاں پر واقعہ پیش آیا جس میں مقامی ایم این اے چودھری حامد حمید کے جو عزیز ہیں ان کے کزن کا ان کا اور ینگ ڈاکٹر کے درمیان جو ہے ہاتھوں پائی ہوئی اور ینگ ڈاکٹروں نے انہیں ایک بدماشی کرتے ہوئے انہیں مارا، نہ پیٹا اور نہ صرف انہیں زد و خوب کیا بلکہ ان کے ساتھ ایک لیڈیز بھی موجود تھی جنہیں ینگ ڈاکٹروں نے وہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں
आज 2 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक यंग डॉक्टर और जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने आउटडोर भी बंद की है। 12 घंटे जो है परसों ये एमरजेंसी बंद रही है, 12 से 13 घंटे, और इस दौरान जो है अभी तक जो है एमरजेंसी तो खुला है, यहाँ पर एक डॉक्टर सिर्फ मौजूद है, जो सीनियर डॉक्टर वो मौजूद है, पेशेंट को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों जो मरीज़ आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर एक है, जिससे शदीद जो मरीज़ों को दुश्वारी पेश आ रही है। और डॉक्टरों के इस झगड़े में और मकामी MNA के इस झगड़े में जो पीछे जा रहे हैं वो लोकल आवाम पीछी जा रही है, और इस वक्त आवाम जो है वो शदीद जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए एक DCO ने कमेटी बाकायदा तौर पे बना दी है, कमिश्नर ने कमेटी बनाई है जो 5 रुकनी कमेटी है, और ये तहकीक कर रही है कि आया गलती किसकी थी, MNA के कज़न की या यंग डॉक्टरों की। कल यंग डॉक्टरों ने नर्सों के साथ भी बदतमीजी की, और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि पैरामेडिकल स्टाफ से भी जी आपका बहुत शुक्रिया शेख उस्मान, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। उधर शाहजियोना का वाहिद वेटनरी अस्पताल इंतजामिया की गफलत के बायस खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। इमारत को खतरनाक करार दे दिया गया है। तारीखी शहर शाहजियोना में कायम पाकिस्तान से कबल बनने वाला वेटरनरी अस्पताल किसी भूत बंगले से कम नहीं है। इंतजामिया की गफलत के बायस इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो चुका है, जबकि बच जाने वाला हिस्सा किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। अस्पताल में वेटनरी अमला तो है, लेकिन बिल्डिंग की खस्ताहाली की वजह से वो सर्दी हो या गर्मी खुले आसमान तले अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने पर मजबूर है। अस्पताल के अमले का कहना है कि बार बार मुतल्लिका हुकाम को आगाह करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो सकी। वेटनरी अस्पताल के अमले और अहले इलाका ने खादिम आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शेखुपुरा के कई स्कूलों में साफ पानी की अदम फराहमी के बायस तालिब इल्म मुश्किलात का शिकार हैं। वाटर फिल्टर प्लांट न लगने के बायस तालिब इल्म मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसी हवाले से देखेंगे खानका डोगरा से मजहर इकबाल की ये रिपोर्ट। तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पंजाब हुकूमत शरह ख़वानगी बढ़ाने के लिए सूबा भर में जहां स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दाखिला देने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ स्कूलों में दीगर सहूलतों के अलावा तालिब इल्म पीने के लिए साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम है, जिससे बच्चों की स्कूलों में हाजिरी भी मुतासर होती है। आला तलीमी नताइज के लिए बच्चों का सेहतमंद होना इंतहाई ज़रूरी है। जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा देखने में आ रहा है। स्कूल के बच्चों ने स्कूलों में हाजिरी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत से स्कूलों में वाटर फिल्टर प्लांट नस्ब करने का मुतालबा किया है। हुकूमत से अपील है कि वो हमें फिल्टराइजेशन पानी मुहैया करे। गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें फिल्टर पानी मुहैया किया जाए, जिसकी वजह से हम बीमारियों से बचा जा सके। गर्मियों की छुट्टियों से पहले कोशिश करेंगे कि जैसे हमारी नई बिल्डिंग ज़ेर तमीर है वो मुकम्मल हो जाती है, तो हम बच्चों के लिए उसी बिल्डिंग में बच्चों को फिल्ट्रेशन प्लांट भी देंगे, ताकि बच्चे बेहतरीन साफ़ सुथरा पानी पिएँ और सेहतमंद रहें। खानेवाल में अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत तकरीबन 200 खवातीन को 6 रोज़ा तरबियती कोर्स कराया गया और आखिरी रोज में खवातीन में टूल किट्स भी तकसीम की गईं। खानेवाल में फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से अपना रोजगार के नाम से प्रोजेक्ट का आगाज किया गया, जिसके तहत 190 खवातीन को फरोगे कारोबार की 6 रोज़ा तरबियत दी गई। इसके बाद पहले मरहले में तकरीबन 66 खवातीन को टूल किट्स फराहम की गई, जिनमें 30 अड्डा वर्क, 30 कशीदाकारी और 6 सिलाई मशीनें फराहम की गई, ताकि इन खवातीन को रोजगार के मौके मुयस्सर आ सकें। तकरीब में फॉर वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से प्रोग्राम मैनेजर आसिफ शहजाद समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। जिला टोबा टेक्सिंग में यूनिवर्सल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत 2,19,000 बच्चों को स्कूल दाखिल कराने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। यूनिवर्सल प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम के हवाले से मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए MNA जुनेद अनवार चौधरी ने कहा कि मुल्क की तरक्की और बका का इन्हिसार तालीम पर है, और वज़ीर आला पंजाब का अज़्म है कि जब तक वो अपनी नई नस्ल को फैक्ट्रियों और भट्टा खर्च से निकाल कर स्कूलों में दाखिल नहीं करवा लेते, चैन से नहीं बैठेंगे। DC आमिर एजाज अकबर ने कहा कि नौजवान नस्ल के लिए तालीम से बढ़कर कोई तोहफा नहीं। इस मौके पर EDO एजुकेशन ने बताया कि गुज़िश्ता साल दाखिला मुहिम के दौरान जिले भर में 1 लाख से ज़ायद बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में दाखिल कराए गए, और इस साल यूनिसेफ के ताउन से घर घर जाकर सर्वे भी कराया जा रहा है। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह सिंध से। शहजादपुर में 3 अफराद के कत्ल का ड्रॉप सीन सामने आ गया। नीम पागल शख्स ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया।
मकतूलैन के रिश्तेदारों के बयान के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहदादपुर के करीब बैरानी रोड पर टंडू आदम पुलिस थाने की हदूद में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके 3 खवातीन समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में 45 साला नजीरा बीबी, 50 साला नूर मोहम्मद और 55 साला अबलू शामिल है, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ है। पुलिस ने जाँ बहक अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तफ्तीश में मकतूलैन के रिश्तेदारों ने इंकशाफ किया कि उन्हीं की बरादरी के एक नीम पागल शख्स ने फायरिंग की और 3 अफराद को हमेशा की नींद सुला दिया। घोच की सखर बोर्ड के तहत जारी मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान पेपर आउट होना मामूल बन गया है। 10वीं का रियाजी का पेपर वक्त से पहले ही आउट हो गया। इंतजामिया ने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के बजाय सूरत हाल पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। ढेरकी सखर बोर्ड के जारी मैट्रिक के इम्तहानात के दौरान नकल माफिया ने इम्तहानात को मजाक बना लिया। तालीमी बोर्ड के आला हुकाम की नाअहली के बायस पेपर आउट होना मामूल बन चुका है। एक के बाद दूसरा, तीसरा और फिर आज होने वाला रियाजी का पेपर भी वक्त से पहले ही आउट हो गया। आज रियाजी का पेपर फोटोकॉपी की दुकानों पर 100 रुपए में फरोख्त होता रहा। इम्तहानी अमला भी तलबा को रोकने के बजाय मुबैना तौर पर नकल करवाने में मसरूफ नजर आता है। नकल माफिया ने इम्तहानी सेंटर्स की हदूद में दफा 144 के निफाज को भी मजाक बना रखा है। शहरियों ने आला पुलिस हुकाम से बूटी माफिया का कला कमा करने की अपील की है। सूबाई वजीर सेहत जां मेहताब हुसैन के इंतखाबी हल्के में कायम रूरल हेल्थ सेंटर खस्ताहाली का शिकार है। इंतजामिया ने एहतजाजन अस्पताल को बंद कर दिया है। घोटकी की तहसील उबाड़ू के इलाके शाहवाली का रूरल हेल्थ सेंटर अस्पताल हुक्मरानों की नाअहलियों का निशाना बन गया। खंडर नुमा अस्पताल की इमारत के दरवाजे, खिड़कियां और ईंटें बाअसर अफराद के मुलाजिम चुरा कर ले गए हैं। अस्पताल गैर फाल होने के बायस मुकामी सैकड़ों अफराद बुनियादी इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम हैं। इस मौके पर इलाका मुकीनों का कहना था कि गुज़िश्ता इलेक्शन में सूबाई वज़ीर सेहत जां मेहताब ने अस्पताल की बेहतरी के लिए वादे किए थे, लेकिन इक़्तिदार में आते ही अवाम से वादों को भुला दिया गया। अस्पताल बंद होने के बायस 200 से जायद देहातों के रिहायशी सख्त मुश्किलात से दोचार हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो मरीज को करीबी दूसरे शहर के अस्पताल ले जाने में कई घंटे लग जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। मुकामी रिहायशियों ने मुतालिबा किया है कि वज़ीर आज़म नोटिस लेकर अस्पताल को मरीजों के लिए फाल बनाने के अहकाम जारी करें। सखर में माइक्रो कॉलोनी की रिहायशियों ने बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। सखर में बिजली की गैर एलानिया और तवील तरीन लोड शेडिंग के खिलाफ पहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। नवाही इलाका, माइक्रो कॉलोनी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने बड़ी तादाद में सेप्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथों में पंखे उठाकर सेप्को चीफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मौसम गर्मा का आगाज होते ही सेप्को इंतजामिया ने एलानिया के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का आगाज कर दिया है। शदीद गर्मी के मौसम में शहरियों को अजाब में मुब्तला रखा गया। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद न हुआ तो हेडक्वार्टर का घेराव कर लिया जाएगा। उधर खैरपुर के असातिज़ा 2 साल से ज़ायद अरसे की तनख्वाहें न मिलने पर गुज़िश्ता 4 रोज से सरापा एहतजाज है, मगर ताहाल इंतजामिया के कानों पर जू नहीं रेंगी। असातिज़ा के एक वफ़द ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खैरपुर में पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और पीपल्स लॉयर्स फोरम के चेयरमैन सरदार लतीफ़ खोसा से मुलाकात करके उन्हें बताया कि असातिज़ा को पीपल्स पार्टी के दौर में मुलाजमतें दी गई थी, लेकिन अब तक उनको तनख्वाहें नहीं अदा की गईं। उनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने उन्हें तनख्वाहें दिलाने के लिए अफसरान को अहकाम जारी किए हैं, लेकिन महकमा तालीम के अफसरान जानबूझकर तनख्वाहें देने में ताख़ीर कर रहे हैं, जिस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने असातिज़ा को यकीन दिलाया कि वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से बात करके उन्हें तनख्वाहें दिलवाएंगे। बाद में असातिज़ा ने अपने हड़ताली कैंप पर पहुंचकर अपनी अलामती भूख हड़ताल जारी रखी। और अब रुख करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का। कोहिस्तान
बलूचिस्तान में मट्टी का तूदा गिरने से हलाकतों की तादाद 14 हो गई है। मलबे से 18 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियों का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कोहिस्तान के मुताबिक कोहिस्तान के नवाही गांव और दीगर मकामात पर मट्टी के तूदे गिरने से हलाकतों की तादाद 14 तक पहुंच गई है। मट्टी का तूदा गिरने से मकानों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने का काम जारी है। ताहम मौसम खराब होने से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। डीपीओ कोहिस्तान के मुताबिक मट्टी के तूदे के नीचे अभी भी 23 अफराद दबे हुए हैं। पुलिस और मुकामी इंतजामिया के 60 एहलकार रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना था कि इलाके से जख्मियों के इनखला के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए भी दरख्वास्त की है। तर्जमान एनडीएमए के मुताबिक वादी कुर्दिया में लैंड स्लाइडिंग के बायस 2 अफराद जाम बहक हुए। मट्टी का तूदा गिरने से 30 अफराद तूदे तले दबे हैं, जिनमें से 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दीगर को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। कोहिस्तान में गुज़िश्ता रोज 7 घरों पर मट्टी का तूदा गिरा था, जिससे कई मकान तबाह जबकि मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए थे। उधर शांगला में बारिशों और सिलाब के बायस 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लैंड स्लाइडिंग के बायस इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ फजल रब्बी से। फजल रब्बी, बताइएगा शांगला के कौन से इलाके मुतासिर हुए हैं सैलाब से? जी बिल्कुल, शांगला के 2 तहसील अलपुरी और पूरन ये सबसे ज्यादा हालिया सैलाब और बारिश से मुतासिर हुए हैं। शांगला का मेन शाहरा अलपुरी ताबिशाम रोड जो है वो हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसकी वजह से इमदादी कामों में काफी मुश्किलात का सामना है। गैर सरकारी इदारे जो रेड क्रॉस, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी और इसके साथ साथ दूसरे इदारे हो इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने में रास्तों की बंदिश की वजह से इंतहाई मुश्किल है। इसके लिए जो रजाकार है वो मुख्तलिफ इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन इलाकों से जख्मियों को निकाल कर अस्पताल पहुंचाए, लेकिन अब तक शांगला में जो तमाम शाहरा है, जो अलपुरी यखतंगे रोड है और जो करोड़ा चकेसर रोड है, करोड़ा शाहपुर रोड है, वो हर किस्म ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद है। जी आपका बहुत शुक्रिया। विफाक और सूबाई हुकूमतों के दावों के बरक्स तारीखी मसाजिद और फन तामीर की शाहकार इमारतें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। पेशावर में एक ऐसी ही तारीखी बावली मस्जिद का अहवाल बताएंगे खालिदुर रहमान अपनी रिपोर्ट में। ज़हीरुद्दीन बाबर फरगाना से अफगानिस्तान और फिर वहां से पेशावर के रास्ते बरसगीर में दाखिल हुआ और हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत की बुनियाद रखी। केपी का दारुल हुकूमत पेशावर हमेशा ही मुगलों का पसंदीदा शहर रहा। उन्होंने यहाँ न सिर्फ पुल बनवाए बल्कि मोहल्लात, कले और तारीखी मसाजिद भी तामीर की, जो सदियों से आज भी इनके शाहकार फन तामीर की गवाह हैं। मुकाम अफसोस है कि मौजूदा हुकूमत की गफलत के बाइस ये तारीखी इमारतें धीरे धीरे खंडरात में तब्दील हो रही हैं। इन्हीं कदीम इमारतों में चूहा गुजर के इलाके में वाक़े बौली मस्जिद भी शामिल है। वजीरी ईंट से बनने वाली इस तारीखी मस्जिद में कई शहनशाह इबादत कर चुके हैं। उस दौर के जो लोग इस रास्ते से रागीर होकर जाते थे आगे किसी इलाकों को, तो उनकी ये मस्जिद थी, इबादतगाह भी थी। इसके आगे हमने 12 मरले ज़मीन छोड़ है मालिक ने कि अरे ये बनाएगा सारे कदीमा वाला, मगर सारे कदीमा वाला आगे इसको देख के चला जाते हैं, दोबारा नहीं पूछते कि यार इसका क्या हाल है, मगर ये गिरने वाला है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत तारीखी मस्जिद को बचाने के लिए फौरी इक़दाम करे ताकि इस्लामी विरसे को महफूज किया जा सके। और अब रुख करेंगे सुबह बलोचिस्तान का। सीबी के करीब जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाके से 3 बोगियां उलट गईं। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान ने पुलिस से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। सीबी के इलाके बख्तियाराबाद में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दों की जानिब से नस्ब धमाका खेज मवाद फटने से पटरी को नुकसान पहुंचा और ट्रैक का 3 फीट का हिस्सा तबाह हो गया। हादसे में रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरकर उलट गईं। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और जख्मियों को तिबी इमदाद की फराहमी और करीबी अस्पतालों में मुंतकिल करने का काम शुरू कर दिया।
धमाके के बाद एफसी, लेविज और पुलिस की भारी नफरी ने इलाके का मुहासरा किया। एफसी ने इलाके को घेरे में लेकर पटरी पर धमाका खेज मवाद नस्ब करने वाले दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। वजीर आला बलोचिस्तान सरदार सनाउल्लाह जहरी ने पुलिस से धमाके की रिपोर्ट तलब की है। वजीर आला ने हादसे में जख्मी होने वाले मुसाफिरों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की हैं। अवामी जमहूरियत चीन का आला सतही वफ्द गवादर पहुंच गया है। गवर्नर बलोचिस्तान ने इस वफ्द का इस्तकबाल किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर चुन स्यांग की सरबराही में वफ्द गवादर पहुंचा, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वफ्द ने गवर्नर बलोचिस्तान के हमरा गवादर पोर्ट एरिया में कायम चाइनीज यादगार पर फूल चढ़ाए। इसके बाद वफ्द को गवादर पोर्ट एरिया में फ्री इक्तसादी जोन और गवादर पोर्ट की तौसी बिजनेस सेंटर के कयाम के मुतालिक ब्रीफ किया गया। चीनी वफ्द ने सेहत और तालीम के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार में भी शिरकत की। वफ्द की सरबराह चुन स्यांग ने कहा कि चीन गवादर में सरमायाकारी करने के साथ साथ सोशल सेक्टर की तरक्की का ख्वाह है। इस मौके पर चाइनीज वफ्द के सरबराह ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गवादर को अतिया की गई जदीद सहूलियात का जायजा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।